Okay, good morning, guys. Now, as I told you, that international trade is divided into three categories: uh, import, then export, and entreport. Okay, import, export एंड एंटरपोर्ट। इंटरनेशनल ट्रेड हमारी तीन इसमें डिवाइडेड थी बच्चों, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। तो अब हमने इंपोर्ट का प्रोसीजर देख लिया कि कैसे होती है, एक्सपोर्ट का भी प्रोसीजर देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली एंटरपोर्ट कैसे होती है, और एंटरपोर्ट के बाद में हमारा यह लेसन फिनिश हो जाता है। अगले इससे हम लोग फिर वी कैन से थर्ड वाला लेसन स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग लास्ट वाला टॉपिक हमारा लेसन का देख लेते हैं बच्चों, एंटरपोर्ट। तो आइए देखते हैं। ऑलरेडी हम इंटरनेशनल ट्रेड में import procedure and export procedure already we've learned about it. Now today we'll start with the procedure. Yeah, exactly what is, we can say, entreport. So let's have a look toward it, guys. Now the third one is entreport trade. Okay, let's start with it. Exactly what is entreport trade. Now entreport trade means, guys, ki I'm sorry, it's a combination of import and export. चलिए, जैसे कि हम अभी इंपोर्ट ट्रेड पढ़ चुके हैं, एक्सपोर्ट भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एक्सपोर्ट, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट मीन्स सेल, import means purchase. Okay, now export means to sell something and import means to purchase something. And export के अंदर सिर्फ सेलिंग्स वाली प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स हमने देखी है, import में सिर्फ परचेज करने वाली प्रोसेस और प्रोसीजर्स हमने देखी है। अब हम लोगों ने देखना ये है बच्चों की एंटरपोर्ट। नाउ वी हैव टू discuss or talk about entreport trade. Now entreport trade is a combination, it is a combination of import and export, yeah, we can say purchase and sales. How? So let's see, guys, ki as I gave you the example that we are selling ornaments, silk or spices to another countries, but of course, yeah, on the another way we are importing crude oil, yeah, any other things from Gulf countries. Okay, guys, so okay, entreport trade means a combination of import and export. As जैसे मैंने आपको बताया था कि import includes only sales of goods, import includes only purchase of goods. Now यहाँ पे हम लोगों ने देखना है entreport trade means it's a combination of import and export, means purchasing and selling. As I told you that we are exporting ornaments, silks, spices and any other things. बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं या बेचते हैं अदर कंट्रीज को. Likewise, we are importing crude oil from Gulf countries. So, now what is entrepreneur, guys? For example, if we are selling ornaments, silks and spices to Gulf countries and in return we are purchasing crude oil from that Gulf countries, तो ये बन जाता है बच्चों एक कॉम्बिनेशन कि कुछ चीज़ें हम बेच रहे हैं, उसी के बदले में कुछ चीज़ें खरीद रहे हैं. तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मैंने आपको जैसे बताया, एंटरपोर्ट एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा मेरा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का. कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट ट्रेड में हम लोग ऑर्नामेंट्स, सिल्क्स और स्पाइसेस बेचते हैं, और इंपोर्ट ट्रेड में हम लोग कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं बच्चों. ठीक है, कुछ चीज़ें खरीदते हैं ऑल. तो क्या होगा कि अगर हम लोग गल्फ कंट्री को हमारे ऑर्नामेंट्स, सिल्क और मसाले बेचेंगे और बदले में उनसे क्रूड ऑयल परचेज अगर करते हैं या करेंगे, उसे ही हम लोग बोल देंगे एंटरपोर्ट ट्रेड. मीन्स it's a combination of purchase and sales, it's a combination of import and export, as we are selling something and in return we are purchasing something.
हम बेच रहे हैं और रिटर्न में कोई चीज़ उससे खरीद रहे हैं, इसीलिए इसे हम लोग बोल देंगे बच्चों इट्स अ वी कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। नाउ लेट्स सी कि एग्जैक्टली ये कैसे वर्क करता है या कैसे ये फंक्शन करता है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। नाउ यहाँ पे आ जाएगी मेरी फॉर एग्जांपल इंडिया, over here Japan, and over here we can say South Africa. चलिए let's take the example of India, Japan and South Africa. Now India, Japan and South Africa, as I told you that interport trade means a combination of import and export. Yeah, interport trade means we can say combination of purchase and sales. So let's have a look how. For example, we are importing here, okay, importing raw material, okay, importing raw material from, and over here exporting here, okay, exporting after process. For example guys, let's take the example of three different countries, India, Japan and South Africa. For example कि we are importing raw material from South Africa, हम लोग साउथ अफ्रीका से कुछ चीज़ें खरीदते हैं या वी कैन से परचेज करते हैं। इम्पोर्ट का मतलब होता है बच्चों, ओवर हियर आई एम राइटिंग, इम्पोर्ट मीन्स परचेज and export means sales. Okay, so let's take the example of three different countries, India, Japan and South Africa. For example, we are importing means we are purchasing raw material from South Africa. Now after we can say doing some processes on it, on that raw material which is purchased or which is imported by South Africa, after doing some processes on it, we are exporting the same after processing to Japan. एक बारी हिंदी में बता देती हूँ कि हम तीन कंट्रीज की एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों यहाँ पे, जापान, इंडिया और साउथ अफ्रीका। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि साउथ अफ्रीका से हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई चीज़ मतलब कि कोई तो एक रॉ मटेरियल खरीदते हैं, कोई भी XYZ, कोई एक रॉ मटेरियल हम लोग साउथ अफ्रीका से खरीदते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं दैट वी आर मैन्युफैक्चरिंग अ कार। चलिए इंडिया मैन्युफैक्चर कर रही है कार, उस कार को बनाने के लिए रॉ मटेरियल हम लोग साउथ अफ्रीका से परचेज कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट का मतलब ही होता है परचेज करना। चलिए हमने साउथ अफ्रीका से कुछ मटेरियल इंपोर्ट कर लिया, अब उस कार का रॉ मटेरियल, अब कार के रॉ मटेरियल में क्या आ जाएगा बच्चों, कार के रॉ मटेरियल्स में आ जाएंगे मेरे पास में टायर्स, चेजी, उसका वी कैन से अंदर के पूरे स्पेयर पार्ट्स, स्टेयरिंग्स, एलॉय व्हील्स, उसके कैप्स एंड ब्ला ब्ला थिंग्स। ये सारा रॉ मटेरियल मैं खरीदती हूँ या परचेज करती हूँ साउथ अफ्रीका से। अब उसे इंडिया में लेके आने के बाद में मैं उन सारी चीज़ों को असेंबल करती हूँ या इकट्ठा करती हूँ या उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग्स करती हूँ आई एम सॉरी, जिसे हम लोग बोल देते हैं कि एक पर्टिकुलर जो एक बेस फॉर्म रहेगा जो हमने साउथ अफ्रीका से ख़रीदा था, कार का एक रॉ फॉर्म रहेगा बच्चों, उसके ऊपर मैं कार की फिर डिज़ाइन, फिर मॉडिफिकेशन, फिर उसमें कुछ भी अलग अलग डिज़ाइंस, कलर्स और बहुत सारे प्रोसेसिंग्स ऐड करके उस चीज़ को जापान को बेच देती हूँ या जापान को एक्सपोर्ट कर देती हूँ, सेल्स कर देती हूँ। इसे ही हम लोग बोल देंगे बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मीन्स we can say we as a citizen of India, we are importing raw material of car from South Africa, and after doing some processes on the same, we are exporting the same to Japan. उसी चीज़ के ऊपर कुछ वी कैन से प्रोसेसिंग्स करने के बाद में हम उस चीज़ को जापान को बेच दे रहे हैं या जापान को बेच रहे हैं। ये हो जाती है बच्चों मेरी इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड के अंदर क्या होता है कि दो कंट्रीज़ जो डील कर रही होती है, मतलब चीज़ें खरीदती है और बेच रही होती है, ये लोग क्या करते हैं बच्चों कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो भी ये कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से गुड रिलेशनशिप्स बिल्डअप होते हैं, फॉरेन करेंसीज मिलती है, जॉब्स प्रोवाइड होते हैं, या वी कैन से प्रोडक्ट को वी कैन से इट हेल्प्स इन मेकिंग प्रोडक्ट फेमस थ्रू आउट द ग्लोब, इट हेल्प्स इन
developing, we can say it also helps in expansion of business, diversification, development of the economy and so many things. तो ये सब कुछ था मेरा एंटरपोर्ट ट्रेड के बारे में. अब बच्चों ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है मेरा सेकंड वाला लेसन जिसका नाम था मेरा ट्रेड. ये लेसन यहाँ पे अब होता है फिनिश. इस लेसन में हमने देखा बच्चों कि इंपोर्ट ट्रेड क्या होती है, एक्सपोर्ट ट्रेड क्या थी, एंटरपोर्ट ट्रेड क्या थी, उनकी प्रोसीजर्स कैसे थे, या वी कैन से हाउ टू रजिस्टर, हाउ टू गेट रजिस्टर्ड, व्हाट इज कस्टम ड्यूटी, व्हाट इज फ्रेट चार्जेस, व्हाट इज ऑक्ट्राई चार्जेस, व्हाट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीएनएफ, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स, ये सारे लोग क्यों होते हैं, क्या इनके काम होते हैं, हाउ पैकेजिंग हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग थिंग्स, गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल, ये सारा सब कुछ हमने इस ट्रेड में देखा. अगला और हमने इस ट्रेड में क्या देखा बच्चों बताया आपको. इस लेसन के द्वारा हमने ये भी देखा कि होलसेलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरर मीन्स जो लोग बल्क क्वांटिटीज़ में चीज़ें वी कैन से मैन्युफैक्चर करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम लोग बोल देते हैं बच्चों मैन्युफैक्चरर, द पर्सन हु प्रिपेयर्स और मैन्युफैक्चर्स द गुड्स. द नेक्स्ट वन इज होलसेलर. होलसेलर इज द पर्सन हु परचेज इन बल्क क्वांटिटीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर चीज़ों को बनाता है, होलसेलर उसी से चीज़ों को बल्क क्वांटिटीज़ में खरीद लेता है, इसलिए उसे रेट बहुत कम मिलता है. नाउ रिटेलर. रिटेलर क्या होता है बच्चों, एक बार ही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेती हूँ. चलिए एक छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग. मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और यहाँ पे आ जाता है बच्चों मेरा डायरेक्ट कंज्यूमर. नाउ मैन्युफैक्चरर इज द पर्सन हु मैन्युफैक्चर और प्रिपेयर्स और प्रोड्यूस समथिंग. Wholesaler purchase the same things in bulk quantities with less price. The retailer is purchasing the same from wholesaler in less quantity and then sell the same to exact consumer या customers. अब ये तो थी मेरी एक डिस्ट्रीब्यूशन लिंक या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिसके तहत चीज़ें मार्केट में आती है. उसके बाद में हमने देखा बच्चों कि वी कैन से रिटेलर के भी बहुत सारे टाइप्स है. रिटेलर में टाइप्स है इटिनेरेंट रिटेलर्स. इटिनेरेंट रिटेलर्स मतलब कि जिनको बैठने के लिए फिक्स्ड प्लेसेस नहीं है. इटिनेरेंट रिटेलर्स मीन्स दोज हु आर नॉट हैविंग फिक्स्ड प्लेसेस ऑफ देयर बिजनेस या फॉर देयर बिजनेस, एंड फिक्स्ड रिटेलर्स दोज हु आर हैविंग फिक्स्ड प्लेसेस फॉर देयर बिजनेस. अब उसके बाद में हमने देखा डिपार्टमेंटल स्टोर्स की कैसे चीज़ों को डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट करके रखा जाता है. उसके बाद में हमने देखे मॉल्स कैसे होते हैं. उसके बाद में हमने देखा ग्रोसरी शॉप क्या होती है, सुपरमार्केट क्या होता है. उसके बाद में हमने देखा वन प्राइस शॉप. वन प्राइस शॉप में वहाँ पे प्राइजेस हो जाती है बच्चों मेरी 99, 199 या 9, 9 एंड 9. यहाँ पे यूजुअली हमें चीज़ें मिलती है गिफ्ट आर्टिकल्स, क्रॉकरीज, किचन सेट्स, कटलरीज और डेली हाउस होल्ड वाले आइटम्स यहाँ पे हमें मिलते हैं. और ये देखा हमने वन प्राइस शॉप देखे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स देखे, मॉल्स देखे, हॉकर्स देखे, पेडलर्स देखे जो चीज़ें सर पे लेकर बेचते हैं, एक ठेले पे लेके बेचते हैं, या दोज हु आर शिफ्टिंग देयर प्लेसेस अगेन एंड अगेन, दोज हु आर नॉट हैविंग फिक्स्ड प्लेस ऑफ देयर बिजनेस या फॉर देयर बिजनेस, दे वी कैन से दे आर कीप चेंजिंग देयर प्लेसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो लोग अपनी प्लेसेस को बच्चों चेंज करते रहते हैं, यहाँ से वहाँ एंड ऑल. तो ये सब कुछ था मेरा इस पूरे लेसन्स के बारे में, ट्रेड लेसन, जिसमें हमने ट्रेडिंग कैसे होती है, चीज़ों को वी कैन से परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे होती है, क्या होती है, ये सब हमने इस लेसन में देखा है. अब अगले इससे हम लोग एक थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच.